Good morning, students of class 11. Welcome to your online classes of English lecture. Today, in Hornbill section, I will be explaining you chapter 3, Discovering Tut, the saga continues. Now, see, what do you mean by discovering Tut here? That means here we are discovering the Tut's tomb. Tut is the short name was given to the king who ruled Egypt at the age of 13 years. His full name was Tutankhamun. His full name was what? Tutankhamun. Okay, or Tutankhaten you could say. Okay, his full name was this, and he was given the short name Tut. Now his tomb was discovered two times, in the year 1922 and in the year 2004 and 5. You must have watched all this in the Discovery Channel also, it was shown. It was discovered two times. That means we are discovering about the Tut's tomb. That means it was taken out from the burial, the coffin was taken out, and it was discovered. We will be talking about all that in this lesson about Tut. T-U-T, Tut, that means the king of Egypt. That means at the age of 13 years, he ruled over Egypt and he died. Okay, and he died also at a very young age. That means we will be finding that how he died. That means most of them expect that he died. That means his murder was the main cause of his death. Okay, most of them believe that his murder was main cause of his death. So we will be studying this lesson today. First of all, what are the major objectives and outcome of the lesson? The major objective of the lesson is that the objectives of the lesson is that you could say that means we should never try to destroy our old sculptures. Okay, that means we should never destroy them. That means we should preserve it for the future generation. We should never destroy all those findings which we are finding. That means the fossils of the dinosaurs also we are finding. Okay, and we are finding the fossils of various things. We should never destroy them. We should keep intact. Okay, this is the main objective of the lesson. That means for our greediness, we should not do such type of acts. We should not destroy it. Okay, and what is the outcome of the lesson? The outcome of the lesson is that means we should try to preserve whatever precious things we are having in this world. Whatever we are discovering, that means we should take very much precautions about that. While discovering that, we should take precautions. That means we should not destroy the old monument of ours. We should not destroy the fossils. Okay, for our greediness. That means we should, whatever findings we are finding, that means we should keep it intact for the future generation, so that the future generation could also see all these things. Okay, so this is the main outcome of the lesson, you could say.
Now I would be explaining you the lesson in detail now. First of all, I would be telling you about the introduction part. Now see, in the introduction part, the short introduction I will give you, discovering Tut, the saga continues. What do you mean by that? We are discovering Tut's storm over here. That means we are discovering Tut's coffin. हम तट के ताबूत को जो है डिस्कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं. द सागा कंटिन्यूज, स्टिल द स्टोरी कंटिन्यूज. सागा कंटिन्यूज मीन्स व्हाट? स्टिल द स्टोरी continues. Describes the boy King Tut. It describes about what? It describes about the boy King Tut. His short name was given Tut. His full name was Tutankhamun. Okay. He was the last heir of his powerful royal family. That means he was the last heir, the last successor. Heir means what? The last successor, the last king of his dynasty, you could say, of his royal dynasty. That ruled Egypt for centuries. That dynasty ruled Egypt for centuries. कई सेंचुरीज तक जो है उन्होंने इजिप्ट पे राज्य किया था. द लेसन ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ सीटी स्कैन. CT scan means computer tomography. That means previously you are having X-rays and all. Okay, nowadays you are having computer tomography and all. That is known as CT scanning. Okay, that means in which the inner part of your body is visible through CT scan, through computer tomography. What you call that? Tut's mummy revealed interesting but startling facts about him. That means while discovering Tut's tomb in the year 2004 and 5 by new scientific equipments and all, that means it revealed what? It revealed interesting but startling facts about him. It was really very interesting and it was startling. Startling means what? Surprising. Surprising facts about King Tut. That means King Tutankhaten. Now we will be studying the lesson in detail now. Now see in the first paragraph, Tut, the last heir of a powerful kingdom. That means Tut was the last king of his powerful dynasty. We'll be talking about that now. Tut was just a teenager. That means King Tut, King Tutankhaten, he or Tutankhamun you could say, he was just a teenager, 13 or 14 years old only, when he died. When he died, he was the last heir of his family. He was the last successor of his family, the last king of his family. This dynasty was very powerful. This dynasty was very powerful. It ruled Egypt for centuries. It ruled Egypt for many centuries. Okay, he was laid to rest in grave laden with gold. That means he was laid in the coffin. जब उसका ताबूत बनाया गया, he was laid in rest in grave laden with gold. बहुत सारा सोना उसके ताबूत में भरा गया. That means why they have filled with much gold in his coffin? Because in the olden days there was a belief that all these things will come to use in his next birth. That means इसके अगले जन्म में ये सारी चीज़ें काम आएंगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वो रखते थे. ओके, तो बहुत सारा गोल्ड था. फाइनली ही वॉज फॉरगॉटन. देन ही वॉज फॉरगॉटन. तब जब उसका ताबूत जो है दफना दिया गया तो लोग उसके बारे में भूल गए. हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922. सबसे पहली बार इसका ताबूत जो है इन द ईयर 1922 को डिस्कवर किया गया. इट अराउज्ड
द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल टू नो अबाउट तट। मतलब लोगों को जानना था तट के बारे में, वो काफ़ी उत्सुक थे तट के बारे में जानने के लिए। इसलिए पहली बार इन द ईयर 1922 डिस्कवर किया गया। उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। एट दैट टाइम वी डिड नॉट हैड एनी एडवांस टेक्नोलॉजी एट ऑल. Nowadays we are having computers, mobile phones and many of the gadgets what we are using to discover the things. We are having those things now. But previously we are talking about द ईयर 1922। उस समय जो है ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं थे। ओके, इट अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल टू नो अबाउट तट। और लोग जो है तट के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक भी थे। अ सीटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज डेड बॉडी। फिर बाद में 2004 या 5 में उनका सीटी स्कैन भी किया गया, ओके, ऑफ तट बॉडी। इट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। जब सीटी स्कैन किया गया इन द ईयर 2004 और 5 विच वॉज शोन इन द डिस्कवरी चैनल ऑल्सो, दैट मीन्स द न्यू क्लूज केम आउट फ्रॉम देयर। हमको नए सबूत मिले तट के लाइफ के बारे में और उसकी डेथ के बारे में। नाउ सी इन द सेकेंड पैराग्राफ, टट्स ममी अंडरगॉन अ सीटी स्कैनर। टट्स ममी को जो है सीटी स्कैनर में रखा गया when it was discovered in 2004 or 5. Tut's mummy is the most famous gilded head, okay, in the world. मतलब टट्स का जो ममी था, तट का जो ताबूत था, जो तट का सर जो था, यू कुड से इट वॉज गिल्डेड हेड इन द वर्ल्ड। गिल्डेड मीन्स वॉट? जिसमें हम सोने या सिल्वर का पानी चढ़ा होता है ना, जस्ट लाइक दैट, ओके, उसमें सोने या सिल्वर का पानी चढ़ा हुआ था, ओके, तट के स्कल के ऊपर, हेड के ऊपर, यू कुड से, ओके, दैट इज नोन एज गिल्डेड हेड। ही डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। मतलब उनकी मृत्यु जो है 3300 ईयर्स एगो हुई थी। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर्ड टू सी द रॉक कट टॉम्ब। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तट का रॉक कट टॉम्ब देखने के लिए। दे गेज्ड एट द वॉल पेंटिंग, और वॉल पेंटिंग्स भी देखते हैं वो। दैट मीन्स इन इजिप्ट, इजिप्ट इज़ फेमस फॉर, यू नो व्हाट इट इज़ फेमस फॉर? इट इज़ फेमस फॉर पिरामिड्स, ओके, एज यू नो इजिप्ट इज़ फेमस फॉर पिरामिड्स। पिरामिड्स देखने के लिए आते हैं, वॉल पेंटिंग्स देखने के लिए आते हैं। दे ऑल्सो सॉ तट गिल्डेड फेस। उनने तट का गिल्डेड फेस भी देखा। गिल्डेड, व्हाट डू यू मीन बाय गिल्डेड? जिसमें सोने या सिल्वर का पानी चढ़ा होता है, दैट इज़ नोन एज गिल्डेड, ओके, फेस। एंड द आउटर कॉफिन, और उसका कॉफिन भी देखा, ताबूत भी देखा जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, ओके, कॉफिन लिड। मेनी पॉन्डर्ड ओवर हिज अनटाइमली डेथ। सबको आश्चर्य हुआ कि उनका डेथ जो है इतना अनटाइमली कैसे हो गया, ओके, उनका डेथ जो है इतना अनटाइमली कैसे हो गया, दैट मीन्स इतनी जल्दी वो कैसे मर गए, ओके। नाउ सी इन द थर्ड पैराग्राफ, मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। दैट मीन्स फर्स्ट इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, ऑल द थिंग्स वर टेकन आउट, इसलिए मम्मी जो है बहुत ख़राब कंडीशन में था। बिकॉज ऑफ दैट विल टॉक अबाउट दैट नाउ। मम्मीज़ कंडीशन वॉज रियली बैड। मम्मी की जो कंडीशन थी, इट वॉज रियली बैड। मम्मी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टट्स टॉम्ब। हम तूतन खातेन के टॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं। वॉज वेरी बैड। हॉवर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब इन 1922। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एज आई टोल्ड यू, इट वॉज डिस्कवर्ड फॉर 2 times. First it was discovered in the year 1922 when there were no scientific gadgets or equipments, and second time it was discovered in 2004 or 5, okay. Nowadays we are having modern computers and all,
modern gadgets and all. Through that, it was discovered in 2004 and 5. Now, previously, it was discovered without any gadgets. Okay. Now, see, discovered touchstone in 1922. Who discovered? British archaeologist. Okay, his name was Howard Carter. He discovered touchstone in 1922. उन्होंने टच के टॉम की खोज जो है 1922 में की थी, 1922 में की थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग many things in golds were placed near his dead body. दैट मीन्स बहुत सारा सोना उसके डेड बॉडी के पास रखा गया था. क्यों रखा गया था? ऐसी मान्यता होती थी कि ये चीज़ जो है जब उनका दूसरा जन्म होगा तो ये सारी चीज़ें उनके दूसरे जन्म में काम आएंगी. ओके. टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ दोज एवरीडे थिंग्स, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो भी जो है उनके बॉडी के साथ रखी गई थी. दैट ही वुड वांट इन आफ्टर लाइफ, जो उनके अगले बर्थ में ये सारी चीज़ें काम आएंगी, ऐसी मान्यता होती थी. दीज वर लिनन गारमेंट्स. ये क्या थे? लिनन के कपड़े थे. दैट मीन्स जरी वाले कपड़े, हैवी कपड़े, गोल्ड और सिल्वर से बने कपड़े, वो गारमेंट्स थे. केसेस ऑफ फूड. ओके. और जो फूड के केसेस होते हैं वो रखे गए. एंड वाइन. ओके. ओल्ड वाइन. ओके. दैट वॉज केप्ट along with his dead body. ओके. जिससे कि ये सारी चीज़ें उनके दूसरे जन्म में काम आएंगी. पुरानी थिंकिंग ऐसी थी. इट वॉज लाइक दैट. नाउ सी, in the fourth paragraph, we'll talk about Carter's problem. Now, what was Howard Carter's problem? जब उन्होंने डिस्कवर किया टट के टॉम को 1922 में, तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि उस समय साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे, मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ईयर. इन द ईयर 1922, कार्टर फाउंड 3 नेस्टेड कॉफिन्स. कार्टर को, हॉवर्ड कार्टर को 3 नेस्टेड कॉफिन्स मिले, ताबूत मिले, जिसमें डेड बॉडी रखा जाता है, एक के नीचे एक. ओके. ऑफ टट. ऑफ टट मीन्स ऑफ तूतन खातेन और तूतन खामुन. ही ओपनड द फर्स्ट एंड फाउंड अ श्राउड. जब उन्होंने फर्स्ट कॉफिन खोला तो उसमें श्राउड रखा था. श्राउड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई श्राउड? जो डेड बॉडी को कवर करते हैं, जो कपड़े से डेड बॉडी को हम ढांकते हैं, दैट इज़ नोन एज श्राउड. उसमें श्राउड मिला. इट वॉज डेकोरेटेड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलोज. दैट मीन्स विलो के फ्लावर. विलो इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर, और उसकी मालाओं से वो ढका हुआ था. ऑफ विलो. एंड ऑलिव, और ऑलिव के फ्लावर्स होते हैं तो उसके मालाओं से वो ढका हुआ था. एंड लोटस पीटल्स, और लोटस के फूलों से वो ढका हुआ था. ओके. कार्टर रैन इनटू ट्रबल व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी. कार्टर को प्रॉब्लम तब आई जब वो ममी तक पहुँचे. द रिचुअल रेजन्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाई रिचुअल रेजन्स? जो पत्थर जैसा जम जाता है. फॉसिल कभी कभी हार्ड हो जाता है ना, द फॉसिल बिकम्स हार्ड सम टाइम. तो उसमें क्या जम जाता है? रेजन्स. पत्थर के माफिक जो है उसमें जम जाता है, पत्थर जैसी चीज़ें उसमें जम जाती है. दैट इज़ नोन एज रेजन्स. व्हाट वी कॉल दैट रेजन्स. ओके. हैड हार्डन, वो काफ़ी हार्ड हो गए थे, जस्ट लाइक अ स्टोन. जैसे फॉसिल्स जो है पत्थर बन जाता है, हम डायनासोर्स के फॉसिल्स भी फाइंड करते हैं तो वो स्टोन जैसा बन जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है, जैसे उसको हम रेजन्स कहते हैं. ओके. द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन्ड, वो काफ़ी हार्ड हो गए थे रेजन्स. टट वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन. और टट को किस में रखा गया था? गोल्ड कॉफिन में रखा गया था, सोने के ताबूत में उसको रखा गया था. कार्टर ट्राइड टू लूजन द रेजन्स. कार्टर ने जो है रेजन को अलग करने की कोशिश की. किससे अलग करने की कोशिश की? विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चीजल. हथौड़े से और छेनी से उसको अलग करने की कोशिश की, रेजन्स को. ओके.
That means what he did. Now see, Carter tried to loosen the resin by putting the mummy in the blazing sunshine. सबसे पहले तो सनशाइन में उसको रखा, बट ही फेल्ड, लेकिन उनको जो है उससे कोई लाभ नहीं मिला. दैट मीन्स सनशाइन में रखने के लिए क्या उपाय था? सनशाइन में रखने का ये उपाय था कि रेजिन जो है सॉफ्ट हो जाएंगे बाद में और इसको इजीली निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको सक्सेस नहीं मिली. ओके, नाउ सी, बट ही फेल्ड. द ममी वॉज टू बी रिमूव्ड बाई चीजल एंड हैमर. अब ममी को किससे करना था अलग? जो है गोल्ड को किससे अलग करना था? जब ममी से गोल्ड को अलग करना था तो उसने चीजल और हैमर का यूज़ किया. ओके, इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, thieves would have cut it apart to remove the gold. तो कार्टर ने क्या एक्सक्यूज़ दिया? जब उन्होंने चीज़ल और हैमर चलाया तो ममी डिस्ट्रॉय हो गया कम्प्लीटली. ओके, तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया? अगर वो ये काम नहीं करते तो चोर ये सारा काम कर देते, चोर चुराने के लिए अपना सारा काम कर देते. कार्टर मेन रिमूव्ड द ममीज हेड. कार्टर के लोगों ने जो है ममी के हेड को निकाल दिया था. देन दे सेपरेटेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट एंड जॉइंट. और उन्होंने सारे पार्ट और जॉइंट को जो है सेपरेट कर दिया था, बिखेर के रख दिया था, डिस्टर्ब करके रख दिया था. ओके, दैट मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम दे वर नॉट हैविंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड ऑल. दैट मीन्स दे डिस्ट्रॉयड द ममी totally. That we, as we say, we should not destroy our old fossils, what we find, old sculptures, what we find under the ground. We should never destroy them. We should never destroy our monuments and all. That means we should keep it safe for our future generation. लेकिन कार्टर ने ऐसा नहीं किया, सावधानी नहीं बरती, तो उसने मम्मी को जो है टोटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया. Now see in the 5th paragraph, modern archaeology. Now we will be talking about modern archaeology, the modern techniques, the modern equipments. Okay, archaeology has changed a lot now. अभी archaeology जो है काफ़ी हद तक बदल गई है. It has acquired sophisticated tools. आज हमारे पास sophisticated tools भी हैं, कंप्यूटर्स हैं, गैजेट्स हैं, दूसरे मशीनरीज़ हैं. जैसे हम टाइटेनिक के जो चीज़ों को भी जो फाइंड करते हैं तो समुद्र में जाने वाले कैमराज होते हैं. वी आर हैविंग दोज कैमराज विच गो इनटू द सी. ओके, दैट मीन्स ऑल दोज इक्विपमेंट्स वी आर हैविंग, कंप्यूटर्स वी आर हैविंग, मॉडर्न गैजेट्स वी आर हैविंग. थ्रू दैट we can discover the things now. Okay, archaeology has changed a lot now. It has acquired sophisticated tools. आज हमारे पास modern tools हैं, sophisticated tools हैं. It adopts medical technology, और medical technology में भी ये काम आता है. Okay, today's diagnostic imaging can be done through computed tomography. आज का हम डायग्नोज जो है थ्रू सीटी स्कैन कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो हम इनर पार्ट ऑफ द बॉडी को देख सकते हैं, और यू कैन कॉल इट सीटी स्कैनिंग. हियर हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज क्रिएट अ 3 डायमेंशनल रियल बॉडी. मतलब हंड्रेड्स ऑफ इमेज को हम 3D इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ अ रियल बॉडी. दे कैन आंसर हाउ अ मैन डाइड, और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, एंड हाउ ओल्ड ही वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और हम उसकी उम्र भी पता कर सकते हैं कि डेथ के समय उसकी एज क्या थी. नाउ सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, यंग तूतन खातिन. हिज नेम वॉज तूतन खातिन, एज आई टोल्ड यू. ही वॉज यंग तूतन खातिन और किंग टट, or given the name King Tut. Tutankhaten took the throne at a very young age. Tutankhaten took the throne at a very young age. बहुत कम उम्र में वो राजा बन गए थे. He was widely known as King Tut. उनको वाइडली जो है किंग टट शॉर्ट में बुलाया जाता है. ओके, ही रूल्ड
फॉर अबाउट 9 years, 9 साल तक उन्होंने राज्य किया, एंड रिस्टोर्ड ओल्ड वेज, और ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो किया। उन्होंने नया ट्रेडिशन कुछ नहीं लेके आया, उन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो किया। ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेथ बहुत ही कम एज में हो गई थी, व्हेन ही वाज अ टीन एज, और यू कुड से व्हेन ही वाज 14 or 15 years old. Okay, he died at that age. Many of them suspect that his murder was committed behind his death. Okay. Now see in the next paragraph, a CT machine scanned the mummy. Okay. In 2004 and 5, the CT scanning of Tut was done. Computer tomography of Tut's mummy was done. A CT machine scanned the mummy from head to toe. That means in 2004, when it was done for second time, when it was discovered for second time, that means it was discovered from head to toe. सर से लेके पाँव तक जो है तट के मम्मी को डिस्कवर किया गया. It created about 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस. मतलब कितने इमेजेस क्रिएट किए? 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस वेयर क्रिएटेड. His head was scanned. His head was scanned. तट के हेड को स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, और बहुत ही बारीकी से जो है इसको स्कैन किया गया था इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस. ओके. वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम. जो वर्कमैन थे उन्होंने टॉम से टट के बॉडी को निकाला from his coffin box. But the scanner did not work due to sand going into the machine. फिर बाद में तेज़ हवाएं चलने लगी. वहाँ बोलते हैं अगर तट के बॉडी को कोई निकालता है तो श्रापित था वो. ओके. दैट मीन्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको श्रापित किया गया थी. अगर कोई इसकी बॉडी निकालेगा तो वहाँ तेज़ हवाएं, तेज़ विंड चलने लगेंगी. वॉट यू हैव वॉच्ड इन द मूवी ममी ऑल्सो, when they go to pick the things, old monuments, old things and all, what happens with them. वहाँ पे जो है डेंजरस हवाएं चलने लगती हैं. इन द मूवी ऑल्सो, इफ़ यू वॉच द मूवी. ओके. पार्ट 1 द ममी, पार्ट 2 द ममी. ओके. वी आर टॉकिंग अबाउट इजिप्ट. ओके. बट द स्कैनर डिड नॉट वर्क ड्यू टू सैंड गोइंग इन टू द मशीन. और स्कैनर चलना बंद हो गया था जब टट के बॉडी को निकाला गया. तेज़ हवाएं चलने लगी और सैंड जो है स्कैनर के अंदर चला गया. परहैप्स इट वॉज द कर्स ऑफ द पैरो. दैट मीन्स ये एक राजा का श्राप था, क्योंकि श्राप था अगर जो भी टट के बॉडी को निकालेगा तो ऐसा होगा उसके साथ. ओके. तो एक राजा का, पैरो मीन्स द किंग, एक राजा का ये श्राप था. कर्स मीन्स उसका श्राप था. ओके. बट द सब्स्टिट्यूट्स फैन हेल्प्ड टू फिनिश द होल प्रोसेस. लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपना काम पूरा किया. नाउ सी इन द लास्ट पैराग्राफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑन द कंप्यूटर. दैट मीन्स एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑन द कंप्यूटर वर प्रोड्यूस्ड. कंप्यूटर्स में टट की बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. नाउ सी, a technician pulled up the wonderful images of Tut. टेक्नीशियन ने जो है बहुत अच्छे इमेजेस टट के निकाले, टट के ताबूत के निकाले, टट के कॉफिन के निकाले, टट के बॉडी के निकाले. अ कंप्यूटर स्क्रीन, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन हिज हेड एंड बोन्स ऑफ द नेक अपीयर्ड क्वाइट क्लियरली. उनका जो सर है और उनका जो नेक है वो बहुत क्लियरली विजिबल था. ओके. अदर इमेजेस शोड हैंड एंड सेवरल व्यूज़ ऑफ रिब्स एंड स्कल. और जो दूसरे व्यूज़ थे वो हाथ के थे, और बहुत सारे व्यूज़ जो है उनके रिब्स के थे. रिब्स मीन्स जो स्टमक के बाजू में एट द बैक शोल्डर वी आर हैविंग द रिब्स, दैट इज़ कॉल्ड रिब्स. उनके रिब्स के थे. ओके.
दैट मीन्स और उनके स्कल के थे, स्कल मीन्स द हेड पार्ट, दिस इज नोन एज स्कल, ओके। और उनके स्कल के थे, एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था, अच्छा चल रहा था, ओके। व्हेन दे केम डाउन द विंड हैड स्टॉप्ड, जब उन्होंने तट के बॉडी को अंदर रखा तो तेज़ हवाएं चलना बंद हो गई, क्योंकि वो जगह श्रापित है। अगर हम तट के टॉम को निकालते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है पुराने लोगों के श्राप से, ओके, तो तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। जब हम उसको सुरक्षित तरीके से अंदर रख देते हैं तो तेज़ हवाएं वहाँ पे चलना बंद हो जाती है। व्हेन दे केम डाउन द विंड हैड स्टॉप्ड, जब उन्होंने तट के बॉडी को अंदर रखा तो विंड चलना बंद हो गया। जस्ट अबाउट तट स्टॉर्म स्टूड अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मतलब तट के टॉम के ऊपर एक क्लस्टर ऑफ स्टार बनता है, आसमान में एक स्टार बनता है, और वो स्टार जो है तट के टॉम को प्रोटेक्ट करता है। दैट स्टार प्रोटेक्ट्स द तट स्टॉर्म नोन एज ओरियन, उस स्टार को हम ओरियन कहते हैं, ओके। जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स है उस स्टार को हम क्या कहते हैं, ओरियन। ओरियन स्टार का क्लस्टर जो है तट के टॉम को प्रोटेक्ट करता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, इट ऑलवेज कीप्स अ चेक ऑन द बॉय किंग, वो तट के टॉम को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। दिस क्लस्टर वॉज नोन एज द सोल ऑफ ओसिरिस, ओके। ये क्लस्टर जो है किसकी आत्मा थी, ओसिरिस की आत्मा थी। ये क्लस्टर ऑफ स्टार्स किसकी आत्मा थी, ओसिरिस की आत्मा थी, जो तट के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स ओसिरिस वॉज हु, ओसिरिस वॉज द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मतलब ओसिरिस जो है वो भगवान हैं जो आफ्टर लाइफ के गॉड हैं, मतलब आफ्टर द डेथ जब तुमको दूसरा जीवन मिलता है वो उनके भगवान होते हैं। ओसिरिस इज़ द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ विच प्रोटेक्ट्स द तट स्टॉर्म फॉर एवर। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट, okay, so read the chapter very thoroughly, all of you, go through the chapter, okay, be safe and healthy, always take care of yourselves. Thank you very much.